Students, here we have to find middle equation of the given curve x is whole power x power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 is equal to a to the power 2 by 3. स्टूडेंट्स यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन है x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 is equal to a to the power 2 by 3. This is the Cartesian equation because it is in the term of x and y. Here we have to find middle equation, so we have to convert this in R and P form, where R is the radius vector and P is the length of perpendicular drawn from pole on the tangent. So first we write this equation of curve x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 is equal to a to the power 2 by 3. Now we differentiate this with respect to x. Differentiate this with respect to x. So we put here d by dx of x to the power 2 by 3 plus d by dy of y to the power 2 by 3 is equal to d by dx of a to the power 2 by 3. आप देख सकते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए ऑपरेटर लगाया है d by dx of x की पावर 2 by 3 plus d by dx of y की पावर 2 by 3 is equal to d by dx of a की पावर 2 by 3. Now differentiation of s की power 2 by 3 is 2 by 3 s की power 2 by 3 minus 1. Here differentiation of y की power 2 by 3 with respect to x can be written as d by dy of y की power 2 by 3 multiplied by dy by dx. Here a की power 2 by 3, this is constant, so differentiation of this with respect to x is 0. Now this is 2 by 3 and x to the power 2 by 3 minus 1, that is minus 1 upon 3. Now we differentiate y to the power 2 by 3 with respect to y is 2 by 3 y to the power 2 by 3 minus 1 dy by dx is equal to 0. Now this equation can be written as 2 by 3 x to the power minus 1 by 3 plus 2 by 3 y to the power minus 1 by 3 dy by dx is equal to 0. Now we divide this equation by 2 by 3, so we get x to the power minus 1 by 3 plus y to the power minus 1 by 3 d by dx of y is equal to 0. Now we transform this x to the power minus 1 by 3 in the right hand side, we get y to the power minus 1 by 3 d by dx of y is equal to minus times 1 upon x to the power minus 1 by 3. Now this can be written as d by dx of y is equal to minus times x to the power minus 1 by 3 divided by y to the power minus 1 by 3. This can be also written as minus y to the power 1 by 3 divided by x to the power 1 by 3. आप देख सकते हैं यहाँ पर x की पावर 2 by 3 का जो d by dx होगा 2 by 3 x की पावर 2 by 3 minus 1 प्लस y की पावर 2 by 3 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करने के लिए इसको लिखेंगे d by dy ऑफ y की पावर 2 by 3 मल्टीप्लाइड बाई dy by dx. एंड a की पावर 2 by 3 कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा. अब 2 by 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का 1 by 3 आएगा, और y की पावर 2 by 3 का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 by 3 y की पावर 2 by 3 minus 1 होगा मल्टीप्लाइड बाई dy by dx. 2 by 3 x की पावर माइनस 1 by 3 प्लस 2 by 3 y की पावर 2 by 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y की पावर माइनस 1 by 3 आएगा मल्टीप्लाइड बाई dy by dx. 2 by 3 से होल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो x की पावर माइनस 1 by 3 प्लस y की पावर माइनस 1 by 3 मल्टीप्लाइड बाई dy by dx इक्वल टू 0 होगा. x की पावर माइनस 1 by 3 को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो ये माइनस का माइनस टाइम्स x की पावर माइनस 1 by 3 होगा. अब ये y की पावर माइनस 1 by 3 से राइट हैंड साइड में डिवाइड करेंगे तो dy by dx की वैल्यू माइनस x की पावर माइनस 1 by 3 डिवाइड बाई y की पावर माइनस 1 by 3 होगा. y की पावर माइनस 1 by 3 को न्यूमरेटर में लाएंगे और x की पावर माइनस 1 by 3 को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो इसकी पावर का साइन बदल जाएगा, यानी माइनस टाइम y की पावर 1 by 3 डिवाइड बाई x की पावर 1 by 3. Here we have find minus dy by dx is equal to minus times y to the power 1 by 3 divided by x to the power 1 by 3. आप देख सकते हैं यहाँ पर dy by dx of y मिल गया. Now we find equation of tangent. So equation of tangent at point x comma y is capital Y minus small y dy by dx
capital X minus small x. Now we put here value of d by dx of y, that is capital Y minus small y is equal to minus y to the power 1 by 3 upon x to the power 1 by 3 capital X minus small x. This x to the power 1 by 3 multiplied by this, so x to the power 1 by 3 multiplied by y minus y x to the power 1 by 3 is equal to minus y to the power 1 by 3 capital X plus x y to the power 1 by 3. आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है एक्स वाई पॉइंट पर वो होती है कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स. अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस वाई की पावर 1 बाई 3 अपॉन एस पावर 1 बाई 3 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. एस की पावर 1 बाई 3 को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसीलिए माइनस वाई की पावर 1 बाई 3 को कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स में मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये कैपिटल एक्स टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफॉर्म करेंगे, so this will be y to the power 1 by 3 capital X plus x to the power 1 by 3 capital Y is equal to x to the power 1 by 3 small y plus y to the power 1 by 3 small x. Now we divide whole equation by x to the power 1 by 3 y to the power 1 by 3. So we get here capital X upon x to the power 1 by 3 plus capital Y upon y to the power 1 by 3 is equal to, this will be x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3. Divide whole equation by x to the power 1 by 3 multiplied by y to the power 1 by 3. So here we write divide both sides by x to the power 1 by 3 multiplied to y to the power 1 by 3, we get this one. Now from the given equation of curve we can see right hand side can be written as a to the power 2 by 3. So this is equal to x upon x power 1 by 3 plus capital Y upon y to the power 1 by 3 is equal to a to the power 2 by 3. This is the equation of the tangent of the given curve at x comma y. आप देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की एक्स वाई पॉइंट पर ये होती है कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स. अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस वाई पावर 1 बाई 3 अपॉन एक्स पावर 1 बाई 3, इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. फिर एक्स की पावर 1 बाई 3 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई से, और इसी तरीके से माइनस वाई पावर 1 बाई 3 कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स से मल्टीप्लाई हो गया. अब ये कैपिटल एक्स जो राइट हैंड साइड में टर्म है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये वाई पावर 1 बाई 3 कैपिटल एक्स होगा प्लस एक्स पावर 1 बाई 3 कैपिटल वाई, और ये लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वाई एक्स पावर 1 बाई 3 इसको राइट हैंड साइड लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा. अब होल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे x की पावर 1 बाई 3 y पावर 1 बाई 3 से. जब डिवाइड करेंगे तो y पावर 1 बाई 3 कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन स्मॉल x की पावर 1 बाई 3 होगा. इसी तरह प्लस कैपिटल y अपॉन स्मॉल y की पावर 1 बाई 3 होगा. और जब x की पावर 1 बाई 3 मल्टीप्लाई y को जब डिवाइड करेंगे x की पावर 1 बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई y की पावर 1 बाई 3 से, तो x पावर 1 बाई 3 कैंसिल हो जाएगा. y अपॉन y की पावर 1 बाई 3 उसको हम y पावर 2 बाई 3 लिखेंगे. इसी तरीके से सेकंड टर्म को जब आप डिवाइड करेंगे y पावर 1 बाई x पावर 1 बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई y पावर 1 बाई 3 से, तो y पावर 1 बाई 3 कैंसिल हो जाएगा और x अपॉन x की पावर 1 बाई 3 आएगा, तो 1 पावर में से 1 बाई 3 सब्ट्रैक्ट होगी तो x की पावर 2 बाई 3 मिल जाएगा. फिर राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है उससे a की पावर 2 बाई 3 लिख सकते हैं. तो अब हमको जो गिवन कर्व की इक्वेशन थी उसको डिफरेंशिएट करके हमने डी बाई डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करा, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली एक्स वाई पॉइंट पर. Now we find out length of perpendicular from origin on the tangent. अब हम यहाँ पर टेंजेंट पर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है उसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे, तो वो हो जाएगी c इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. c इज हियर a टू द पावर 2 बाई 3 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. A is coefficient of capital X and B is coefficient of capital Y. So here we write S 1 upon S की power 2 by 3 plus 1 upon Y to the power 2 by 3. So this can be written as A to the power 2 by 3. Here we take LCM, that is S to the power 2 by 3 multiplied by Y power 2 by 3. So we get here Y power 2 by 3 plus S की power 2 by 3. Now here we put from given equation of curve this x की power 2 by 3 plus y power 2 by 3 is equal to a to the power 2 by 3. So this will be a to the power 2 by 3
divide by under root a to the power 2 by 3 upon s to the power 2 by 3 multiplied by y to the power 2 by 3. Now taking square root of this denominator, we get a to the power 2 by 3 divided by a to the power 1 by 3 divide s to the power 1 by 3 multiplied by y to the power 1 by 3. Now this will be multiplied in the numerator, so it gives s to the power 1 by 3 multiplied by y to the power 1 by 3 multiplied by a to the power 2 by 3 divided by a to the power 1 by 3. Now this a to the power 1 by 3 subtract by a to the power 2 by 3. So 2 by 3 minus 1 by 3, this gives 1 upon a to the power 1 by 3. So this can be written as a to the power 1 by 3 x to the power 1 by 3 y to the power 1 by 3. आप देख सकते हैं जो गिवन कर रहा है उस पे जो टेंजेंट है उस पे हम ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं उसकी लेंथ निकाल रहे हैं, तो p इज इक्वल टू होता है c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वेयर c इज द कांस्टेंट टर्म इन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. हियर कांस्टेंट टर्म इज a to the power 2 by 3 upon under root a square plus b square, where a and b are the coefficient of capital X and capital Y. Here coefficient of capital is 1 upon small x की whole power small x power 1 by 3 whole square, that is x 1 upon x की पावर 2 by 3. इसी तरीके से हम कैपिटल y का जो कोफिशिएंट है 1 upon y की पावर 1 by 3 इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1 upon y की पावर 2 by 3 हो जाएगा. अब डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर हम जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा x की पावर 2 by 3 y की पावर 2 by 3, इससे आएगा y की पावर 2 by 3 प्लस x की पावर 2 by 3. आप देख सकते हैं जो गिवन कर्व की इक्वेशन है उससे x की पावर 2 by 3 प्लस y की पावर 2 by 3 के प्लेस पे हम a की पावर 2 by 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर डिनोमिनेटर में x की पावर 2 by 3 y की पावर 2 by 3. अब जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक पावर 2 by 3 का स्क्वायर रूट लेने पर एक पावर 1 by 3 आएगा, x की पावर 2 by 3 का स्क्वायर रूट लेने पर x पावर 1 by 3 आएगा, y की पावर 2 by 3 का स्क्वायर रूट लेने पर y पावर 1 by 3 आएगा. ये डिनोमिनेटर से x की पावर 1 by 3 y पावर 1 by 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा और अपॉन में एक पावर 1 by 3 आएगा. अब a की पावर 2 by 3 में से एक पावर 1 by 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा एक पावर 1 by 3 x की पावर 1 by 3 एंड y की पावर 1 by 3. Now we know that x square, we know that x square plus y square is equal to r square. Now this is equation, suppose this equation is third and this is fourth equation, and we know that x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 cube is a plus b whole cube. Here we use formula a plus b whole cube, that is equal to a cube plus b cube plus 3ab a plus b. So from this formula we can write a cube plus b cube is equal to a plus b whole cube minus 3ab a plus b. So here we can see this x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3, x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 can be written as x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 whole cube minus 3 times x to the power 2 by 3 y to the power 2 by 3 multiplied by x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3. आप देख सकते हैं यहाँ पर फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b. a के प्लेस पे x की पावर 2 by 3 है, b के प्लेस पे y की पावर 2 by 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b a क्यूब प्लस b क्यूब. सो दिस कैन बी रिटन एज दिस x is this, oh sorry, this is here write 3, this is power 3. Now we can write here x to the power 2 by 3 whole power 3 plus y to the power 2 by 3 whole power 3. That means a cube plus b cube is equal to a plus b whole cube minus 3ab multiplied by a plus b. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फार्मूला यूज किया गया है. a के प्लेस पे x की पावर 2 by 3 है और b के प्लेस पे y की पावर 2 by 3 है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b. नाउ वी नो दैट दिस x पावर 2 by 3 प्लस y की पावर 2 by 3 इज इक्वल टू a to the power 2 by 3 whole cube, because from the given equation of curve we can write here.
and here 3x की power 2 by 3, y की power 2 by 3, and this x power 2 by 3 plus y की power 2 by 3. From the given equation of curve we can write here a to the power 2 by 3. Now power this 3 cancel by this one, we get a square minus, here this can be written as 3x to the power 1 by 3, y to the power 1 by 3, a to the power 1 by 3 whole square. So from third equation we can see here a to the power 1 by 3, x to the power 1 by 3, y to the power 1 by 3 is equal to p. So we put here p. So we get a square minus 3p square. So in the left hand side, so this implies that this power cancel by this 3, so we get x square, and this power cancel by this 3, so we get y square is equal to a square minus 3p square. Now from fourth equation we can see here x square plus y square is equal to r square, so we put here r square is equal to a square minus 3p square. So this can be written as 3p square is equal to a square minus r square. So this is the Peter equation of the given curve x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 is equal to a to the power 2 by 3. आप जानते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है. अब हम फार्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी. यहाँ पर a के प्लेस पे x की पावर 2 by 3 और b के प्लेस पे y की पावर 2 by 3 रख रहे हैं. तो x की पावर 2 by 3 का होल क्यूब प्लस y की पावर 2 by 3 का होल क्यूब इस फार्मूले से लिखा है x की पावर 2 by 3 प्लस y की पावर 2 by 3 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम x की पावर 2 by 3 मल्टीप्लाइड बाई y की पावर 2 by 3 ब्रैकेट x की पावर 2 by 3 प्लस y की पावर 2 by 3. नाउ x की पावर 2 by 3 प्लस y की पावर 2 by 3 के प्लेस पर गिवन इक्वेशन आप कर से a की पावर 2 by 3 हम रख सकते हैं. इसी तरीके से यहाँ पर भी a की पावर 2 by 3 होगा. अब ये पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है तो 3 से 3 कैंसिल होगा तो a स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3 टाइम x पावर 2 by 3 y पावर 2 by 3 मल्टीप्लाई बाई a पावर 2 by 3. इसको हम लिख सकते हैं x पावर 1 by 3 मल्टीप्लाई बाई y पावर 1 by 3 मल्टीप्लाई बाई a पावर 1 by 3 का होल स्क्वायर. क्योंकि पावर पर पावर मल्टीप्लाई होती है तो 1 by 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 by 3 बनेगा. अब आप देख सकते हैं जो थर्ड इक्वेशन है इससे पावर 1 by 3 मल्टीप्लाई बाई x पावर 1 by 3 मल्टीप्लाई बाई y पावर 1 by 3 p के इक्वल है, तो इसके प्लेस पे p रख देंगे तो ये हो जाएगा 3p स्क्वायर. और लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं ये 2 by 3 का होल क्यूब है तो पावर पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 by 3 जब 3 से मल्टीप्लाई होगी 3 की कैंसिल होगा तो x स्क्वायर बनेगा. इसे y की पावर 2 by 3 की होल पावर 3 है तो 2 by 3 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 की कैंसिल होगा तो y स्क्वायर बनेगा. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आप देख सकते हैं फोर्थ इक्वेशन से r स्क्वायर के इक्वल है तो r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर हो गया. इसको हम लिख सकते हैं 3p स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. सो दिस इज द Peter इक्वेशन ऑफ द गिवन कार्टेशियन इक्वेशन x की पावर 2 by 3 प्लस y की पावर 2 by 3 इक्वल टू 1 पावर 2 by 3. तो आपको याद रखना है जब भी आप किसी भी कार्टेशियन इक्वेशन से पीडल इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले कार्टेशियन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके d by dx ऑफ y निकालेंगे. फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक्स वाई पॉइंट पर कैपिटल y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू dy by dx इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल x माइनस स्मॉल x का यूज करके आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे. जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी तो आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन द टेंजेंट से स्मॉल p की वैल्यू निकालेंगे. फिर आप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r का यूज करेंगे और जो गिवन इक्वेशन यहाँ पर कर्व की है 1 और थर्ड इक्वेशन यानी p की जो इक्वेशन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो और जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर है, इन तीनों इक्वेशन से जब आप x y को एलिमिनेट कर देंगे तो आपको r और p में एक इक्वेशन मिलेगी जो गिवन कर्व की पीडल इक्वेशन होगी. थैंक यू.